میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پرائیویٹ اسپتالوں میں مہنگے علاج کروانے پر مجبور شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز کی شرح میں کمی آنے پر محکمہ صحت نے سرکاری اسپتالوں کو روٹین آپریشن دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے بعد روٹین آپریشن ملتوی کیے گئے تھے، جن کو دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کورونا کیسز اور اموات میں کمی پر محکمہ صحت سندھ کا اہم فیصلہ۔ سرکاری اسپتالوں میں روٹین کے آپریشن دوبارہ شروع۔ کورونا کیسز کے اضافے کے باعث سرکاری اسپتال میں روٹین کے آپریشن روک دیے گئے تھے، صرف ایمرجنسی آپریشن کیے جا رہے تھے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق حالیہ دنوں میں وبائی مرض کے کیسز اور اس سے ہونے والی اموات میں واضح کمی واقع ہوئی ہے۔ 24 گھنٹوں میں شہر میں 29 افراد کورونا کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 8.8% رپورٹ ہوئی۔ سیکریٹری صحت کاظم جتوئی نے تمام اسپتالوں میں روٹین آپریشن شروع کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے شہر قائد کے کاروباری مراکز کے اوقات کار بڑھانے اور ہفتے میں ایک روز کاروبار بند کرنے کے فیصلے پر اب تک نظر ثانی نہیں کی جا سکی۔ گزشتہ ہفتے تاجر برادری نے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی یقین دہانی کے بعد احتجاج ختم کر دیا تھا، تاہم صوبائی حکومت کی جانب سے شہر قائد اور حیدرآباد کے کاروباری اوقات کار بڑھانے اور ہفتے میں ایک دن کی بندش کے متعلق فیصلہ تاحال نہ ہو سکا۔ پولیس کا کم عمر موٹر سائیکل ڈرائیورز کے خلاف ایکشن، متعدد جرمانے عائد کیے گئے۔ ساؤتھ پولیس نے کینٹ ٹریفک سیکشن شارع فیصل پر موٹر سائیکل چلانے والے کم عمر لڑکوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے اب تک سینکڑوں والدین کو 500 سے لے کر 1000 روپے تک جرمانے عائد کیے گئے۔ پولیس حکام کی جانب سے کم عمر ڈرائیورز کو گاڑی دینے یا والدین جنہوں نے بچوں کو موٹر سائیکل چلانے کی اجازت دی ہے، ان کے خلاف بھی جرمانے کیے جانے کا عندیہ دیا۔ پولیس موبائل کو ٹکر کیوں ماری؟ اہلکار آپے سے باہر ہو گئے۔ لیاری میں اہلکاروں کا موٹر سائیکل سوار شہری پر وحشیانہ تشدد۔ مزید تفصیلات جانیں گے سعود بن مرتضیٰ کی اس رپورٹ میں۔ لیاری میں شہری کی پولیس موبائل کو ٹکر مہنگی پڑ گئی۔ پولیس موبائل پر تعینات اہلکاروں نے موٹر سائیکل سوار شہری کو بری طرح پیٹ دیا۔ بغدادی کے علاقے میں موٹر سائیکل سوار شہری نے پولیس موبائل کو ٹکر ماری تو 3 اہلکاروں نے شہری کو ڈنڈا ڈولی کر کے موبائل میں لا پھینکا۔ ویڈیو میں واضح طور پر اہلکاروں کو شہری پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں مددگار 15 کا 23 نمبر بھی واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ شہری کے مطابق اس کی موٹر سائیکل غلطی سے پولیس موبائل سے ٹکرا گئی تھی۔ مددگار 15 کی موبائل کھارا در تھانے کی ڈیوٹی پر مامور تھی۔ موبائل بغدادی تھانے کی حدود سے گزر رہی تھی کہ حادثہ پیش آیا۔ شہریوں نے بیچ بچاؤ کرانے کی بھی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام اضلاع کے ڈومیسائل کی جانچ پڑتال کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جھوٹے ڈومیسائل PRC بنانے میں ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینٹ اجلاس ہوا۔ دوران اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ڈومیسائل کے غلط استعمال کو ہر صورت روکنا ہے۔ قانون کے حساب سے ڈومیسائل ملک کے شہری کے لیے جاری ہوتا ہے۔ شہری بے بس اور بے یارو مددگار ہو چکے ہیں۔ بجلی کے بعد گیس کی بندش نے شہریوں کو پریشان کر دیا۔ گیس نہ ہونے کے سبب شہری باہر سے کھانا خریدنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں وسیم افتخار۔ موسم گرما میں گیس کی شدید قلت نے شہریوں کو حیران اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ نارتھ آباد بلاک ایل اور ملیر انور ابراہیم سوسائٹی سمیت شہر کے مختلف اور مضافاتی علاقوں میں اچانک گیس کا چلا جانا معمول بن گیا۔ گیس سے ہر چیز ہے، گیزر کی اگر گرم پانی چاہیے تو ان سب کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، اور اسی سے ہمارے اخراجات بھی بہت بڑھ گئے کیونکہ باہر کا کھانا، باہر کی چیزیں، ہر چیز باہر سے منگوانی پڑتی ہے، وہ روٹی ہو یا وہ سالن ہو یا وہ ہو، تو یہ مسئلہ بہت سنگین ہو گیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ ایسے جیسی حکام گیس کی بندش سے آگاہ کرتے ہیں اور نہ ہی نظام کو درست بناتے ہیں۔ گیس غائب ہونے سے مجبوراً ہوٹل سے کھانا منگانا پڑتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں کریں، لیکن ٹائم بتا دیں آپ کہ بھائی یہ علاقہ ہے، یہ ایل بلاک کا ہے یا یہ این بلاک ہے، اس میں اتنی دیر کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے یا 1 دن کے لیے گیس نہیں ہوگی، آپ پہلے سے انتظام کر لیں۔ کراچی کے شہری پہلے ہی مختلف مسائل سے نمبرد آزما ہے تو وہیں گیس کی قلت بھی ان کے لیے امتحان بن گئی ہے۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ وسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔
ईटा चौरंगी पर पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज किया और सड़क ब्लॉक कर दी। तफसीलात जुनैद फिरोज की रिपोर्ट में। 6 माह से पानी की बंदिश और बिजली भी गायब। कोरंगी अवामी कॉलोनी के मकीन सरापा एहतजाज बन गए। दर्जनों खवातीन और बच्चों ने सड़क को ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के बाइस कोरंगी विटा चौरंगी से सिंगर चौरंगी तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, एम्बुलेंस भी फंस गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि रमजान मुबारक के बाद से इलाके में पानी दस्तियाब नहीं। वाटर बोर्ड हुकाम को दरखास्तें देकर थक गए मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। माफिया है, उनको पानी दे रहे, हम गरीबों को कौन पानी देगा? हम लोग किसके पास जाए? कोई भी आते हैं SHO IDS में जो भी वादा करते, आज सुबह ऑफिस में धक्के खागा कि हमारी जूतियां घिस गई। ये कोई तरीका है? 8-10 महीने हो गए नहीं आ रहे। एक दिन आते हैं 10 मिनट 5 मिनट 5-5-6 दिन बंद करके रखते हैं, फिर 10 मिनट में किसको पूरा हुआ है? एक बाल्टी पानी बढ़ता है, ये कौन सा तरीका है? 24 घंटे के अंदर इनके पीने के पानी के मसले को हल नहीं किया गया। अगर हमें यहाँ 30 दिन बैठना पड़े तो हम यहाँ पर अपने बोरी बिस्तरा लेकर सरापा एहतजाज रहेंगे। 4 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले एहतजाज पुलिस के यकीन दिहाने के बाद खत्म और सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कैमरामैन इमरान AK के साथ जुनैद फिरोज, सिटी 21। नियाबाद में भी गटर के ढक्कन गायब हैं, जिसके बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से कई मरतबा अपील की लेकिन ताहाल कोई इकदाम नहीं हुए। तफसीलात राना माली की इस रिपोर्ट में। शहर के कई इलाकों की तरह नयाबाद के इलाके में जहां जहां नजर दौड़ाएंगे खुले हुए मेन होल्स ही नजर आएंगे। नयाबाद में गटर के ढक्कन न होने की वजह से हादसात मामूल बन गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि कई माह गुजर गए लेकिन गटर के ढक्कन नहीं लगे, जबकि 2 बच्चे भी गटर में गिरकर हादसात का शिकार हुए हैं। 2 तो हादसात हो गए हैं भाई, 2 हादसात हो गए हैं। यहाँ पे 2 लड़कियां गिर गई है भाई। ये कितने 6 महीने से ये गटरें खुली हुई है। बच्चे हमारा खुद का गिर गई, ये बच्ची गटर में इतनी अच्छा के मदर से सारे तो गिरी है, तो उसको अल्लाह ने बचाया कि लड़कों ने फिर निकाल के ले गए। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बारिश होने से पहले गटर के ढक्कन लगाए जाएं ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन साजिद अली के हमरा, राना माली, सिटी 21। और अब बात करते हैं शहर कायद के मौसम की। यहाँ कभी बारिश तो कभी चिलचिलाती धूप के डेरे हैं। महकमा मौसमियात ने मानसून के तीसरे स्पेल की पेश गोई कर दी। रिपोर्ट कर रही हैं रबिया खान। शहर कायद में मौसम के बदलते अंदाज। सुबह के औकात में मौसम खुशगवार, मुख्तलिफ इलाकों में हुई बरसात, मगर दोपहर होते ही चिलचिलाती धूप से मौसम हुआ गर्म और दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने बुध की रात से शहर में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। देखिए, आज सुबह जो बारिश हुई है ये लोकल डेवलपमेंट से हम कह सकते हैं। ये फिर कराची की तरफ वो बादल आए और हल्की बारिश यहाँ पर भी हो गई। कराची में फिर कल रात से इम्कान है। असल स्पेल जो है वो 9 से लेकर 11 के दरमियान है और उसमें किसी जगह पर मॉडरेट और किसी जगह पर तेज़ बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी नया मानसून अलर्ट जारी कर दिया, जिसके तहत बल्दियाती इदारों को 7 से 11 सितंबर तक अलर्ट रहने और नकासी आप के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रबिया खान, सिटी 21। शहर के साहिल सी व्यू में समंदर के किनारे रेत में धंसे बहरी जहाज हैंगटोंग 77 को 1.5 माह की कोशिश के बाद बिलाखिर कामयाब ऑपरेशन के जरिए गहरे पानी में पहुंचा दिया गया। तफसीलात अयाज राना की इस रिपोर्ट में। कराची के साहिल पर 48 दिनों से फंसा जहाज बिलाखिर निकाल लिया गया। सीमैक्स कंपनी के ऑनर आरिफ शेख कहते हैं कि अगर बैरून मुल्क से कोई कंपनी आती तो वो ये ऑपरेशन $2 मिलियन से कम में नहीं करती। अगर बाहर की कंपनी आती तो कम से कम $2 मिलियन तो कम से कम लगता। हमने इसका क्वार्टर भी नहीं लिया है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि किस लेवल पे हमने काम किया हुआ है और जितने भी थे सारे लोकल रिसोर्सेज यूज किए हमने। जबकि शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम का कहना है कि मालिक ने हम पर एतमाद किया और आज हम बहुत मुश्किलात के बाद कामयाब हो गए हैं। ऐसा नहीं था कि ये नहीं हो सकता था। इश्यूज आए, बीच में पैचेस थे जिसकी वजह से बम्प आते रहे, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, जहाज के करीब टग बोट्स नहीं आ सकती थी, 2-2.5 मील से उसको खींचना पड़ रहा था उसमें। तो हमें सब चीज़ें फेवर में मिली हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये अपने उससे हम किनार हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर बहरी उमूर महमूद मौलवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहाज के निकलने के तमाम अखराजात जहाज के मालिक को बर्दाश्त करना होंगे। जो भी खर्चा है वो ओनर ने दिया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं दिया है इसके ऊपर, क्योंकि ओनर इसको मेंटेन भी करेगा और इसके जो मसाइल अभी बाकी हैं
मेन सी में जाने के लिए, उसके ऊपर भी ओनर इसके ऊपर करके MMD को सेटिस्फाई करेगा एज पर IMO रूल्स। 21 जुलाई की दरमियानी शब पनामा में रजिस्टर्ड हैंगटोंग 777 एंकर टूट जाने की वजह से CBO के किनारे रेत में धंस गया था। बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से, जो कि थम ना सकी। इंटरबैंक में डॉलर एक दिन में 40 पैसे महंगा होकर साल की बुलंद तरीन सतह 167 रुपये 63 पैसे पर पहुंच गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। रुपया मजीद कमजोर और डॉलर मजीद तगड़ा हो गया। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा होकर साल की बुलंद तरीन सतह 167 रुपए 63 पैसे पर पहुंच गया। 2 माह 9 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपए 9 पैसे महंगा हो चुका है। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान का कहना है कि 2 साल बाद पहली बार इंटरबैंक और आवाम में डॉलर की डिमांड 50% बढ़ गई है। अब 40,000 और 25,000 रुपए वाले प्राइस बॉन्ड से डॉलर खरीदा जा रहा है। पाकिस्तान में डॉलर की डिमांड इंटरबैंक बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि 30 सितंबर को जो 40,000 के बांड हैं उनकी मुद्दत ख़त्म होने वाली है और लोग जिनके पास बांड पड़े हैं वो अपने पैसे को बजाय सिलेंडर करा के उस पैसे से वो ले रहे हैं, डॉलर ख़रीद रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक में डॉलर की डिमांड बढ़ गई और उसकी पहली दफ़ा 2 साल में हुआ कि मार्केट में डिमांड आई है, वरना इससे पहले 90% हमारी इंटरबैंक में हम सेल करते थे, 10% पब्लिक लेती थी। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर और दीगर करेंसियां महंगी हो गईं। ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे महंगा होकर 168 रुपए 70 पैसे पर जा पहुंचा। यूरो 1 रुपए महंगा होकर 200 रुपए और बरतानवी पाउंड भी 1 रुपए महंगा होकर 233 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। इमारती धर्म एक दिन में 50 पैसे महंगा होकर 46 रुपए 30 पैसे और सऊदी रियाल 20 पैसे इजाफे से 44 रुपए 75 पैसे का हो गया। सीमेंट, सरिये और लकड़ी की तरह घरों और इमारतों को रंगने वाले पेंट भी महंगे हो गए। देखिए हबीब खान की रिपोर्ट। दुश्वार तो उसे रंगना भी शहरियों के लिए आसान नहीं रहा। तामीराती सनत से मुंसलिक अशिया, सीमेंट, सरिया और लकड़ी की तरह घर की तज़ीन और आराइश के लिए इस्तेमाल होने वाले पेंट भी महंगे हो गए। शहरियों का कहना है घर खरीदना तो ख्वाब ही बन गया, अब तो एक कमरा रंग करना भी मुश्किल हो गया है। अभी जो नॉर्मली जो आम तबका है, मिडिल क्लास तबका, वो तो कलर करवा ही नहीं सकता, कलर इतने महंगे हो चुके हैं। उसके अलावा जो भी घर में रेवेन्यू का काम हो रहा है, रिपेयरिंग का, वो तकरीबन नामुमकिन चीज़ है। तो महंगाई तो बढ़ी है, उसकी वजह से बहुत से ऐसे मतलब काम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। पहले रंग रोगन हम मतलब मिसाल के तौर पर 5,000 में होता था, वो भी वही रोगन जो है ना वो 7,000 में 8,000 में इस तरह के बाबत जो है ना वो हो गया। पोरा पीर मार्केट में पेंट के होलसेल दुकानदार जैन अरशद का कहना है कंपनियों की जानिब से बार बार इजाफे के बाइस रंगों की कीमतें बढ़ रही हैं। जो प्राइस लिस्ट है विदाउट नोटिफिकेशन हमें कंपनी रिवाइव कर देती है। इस साल हमने 7 से 8 मरतबा ऐसी चीज़ देखी जो रिवाइव हो गई हमें बताए बगैर, और उससे 20 से 30% हर प्रोडक्ट पे जो इंक्रीज़ आया। अब देखिए कस्टमर की इतनी प्रोपेंसिटी टू पे नहीं है, वो इतनी विलिंगनेस नहीं रखता वो पे करने के लिए, तो जाहिर है हमें भी फेस करना पड़ रहा है। आप मार्केट की कंडीशन देख सकते हैं, जिस तरह की वर्स्ट कंडीशन हो गई है, कस्टमर देखने को भी नहीं मिलता। मार्केट में ब्रांडेड कलर की छोटी बाल्टी 300 रुपए महंगी होकर 2,000 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि बड़ी बाल्टी 800 रुपए तक इजाफे के बाद 12,500 रुपए तक की हो गई है। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के साथ हबीब खान, सिटी 21। 39 साल से इंसाफ के ठोकरे खाने वाले 85 साला बुजुर्ग की अदालत ने सुन ली है। तफसीलात जानेंगे बिलाल अहमद की रिपोर्ट में। जज साहब मेरा केस भी सुन लें। 39 साल से इंसाफ के लिए धक्के खाते 85 साला बुजुर्ग ने भरी अदालत में फरियाद कर दी। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस इरफान सादत खान की अदालत में जैकब लाइन के 85 साला बुजुर्ग शहरी गुलजार हुसैन अवान ने कहा 11 साल हो गए उनका केस सुना नहीं गया। जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा बाबा जी आपका केस क्या है। बुजुर्ग शहरी ने बताया कि 1982 में उनका घर लाइन्स एरिया सेटलमेंट प्रोजेक्ट की नजर हो गया, बदले में उन्हें सिर्फ 8 गज कमर्शियल जमीन दे दी गई। फाइल का जायजा लेने के बाद अदालत भी हैरान हो गई। जस्टिस इरफान सादत ने बुजुर्ग शहरी से इस्तफसार किया आपका वकील कहाँ है। बुजुर्ग शहरी ने जवाब में कहा वकील आता नहीं, खुद ही खड़ा हो गया हूँ। 2 साल पहले सर्वे का लिख कर दिया, सर्वे भी नहीं कराया गया। जस्टिस इरफान सादत ने बुजुर्ग शहरी को यकीन दहानी करवाते हुए कहा बाबा जी आपका केस तरजीही बुनियादों पर सुनेंगे। 2011 से कोर्टों में आ रहा हूँ, कभी वकील साहब नहीं आते, कभी कोर्ट बंद हो जाती है, कभी छुट्टियाँ, कभी कुछ। और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे टांग टूटी हुई है, हार्ट अटैक हुआ, मेरा और बहुत सारी बीमारियाँ हैं, BP मेरा लो हो जाता है, मेरी उम्र इस वक्त 85 है, मैं बड़ा परेशान हूँ।
कि मुझे अपना हक मिलना चाहिए, इतना टाइम गुजर गया। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। सरकारी वकील को भी खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत देते हुए केस की समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने FIA के मुकदमे के खिलाफ शुगर मिल्स मालिक की दरख्वास्त मंजूर करते हुए तफ्तीशी ऑफिसर को तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट में FIA के मुकदमे के खिलाफ शुगर मिल्स मालिक की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि FIA ने मेरे खिलाफ झूठी FIR दर्ज की है। शहर में बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के नाकिस इंतजामात ने शहरियों को परेशान कर रखा है। रिपोर्ट कर रही हैं समीन नवाज। जगह जगह बहता सीवरेज का पानी गंदगी और बीमारी फैलाने लगा। जहां शहर के कई मकामात में बरसाती पानी की निकासी ताहाल मुकम्मल ना हो सकी, वहीं उबलते गटर ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। मुताद्दिद मरतबा शिकायत के बावजूद इंतजामिया ख्वाब गफलत से ना जाग सकी। 4-5 दिन हो गए जब से बारिश है, जब से यही सूरत हाल है यहाँ पे। हालांकि कंप्लेन भी करी थी, लेकिन गाड़ी आई, गाड़ी देख के वापस चली गई। ये मुसलसल पानी बह रहा है। मोइनाबाद, बोस्तान रजा और गुलिस्तान कलीम की गलियों में सीवरेज का बहता पानी रोकने वाला कोई नहीं। इलाके में पैदल चलने वालों का गुजरना भी दुश्वार हो गया है। यहाँ पूरा ये रोड ऐसा है कि कोई मोटरसाइकिल भी यहाँ से नहीं गुजर सकती है। नमाजी तो दूर की बात है, सब सिस्टम धर्म भरम किया हुआ इन्होंने। कोई सिस्टम पे ये लोग हाथ नहीं मार रहे हैं, कुछ भी कोई काम नहीं हो रहा है। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस रोड के ऊपर घर के अंदर बाइक लेके जाएं, सारा कीचड़ का पानी जा रहा है, तो कोई सुनने वाला नहीं है। शहर में बारिशों के बाद सड़कों पर जमा पानी अभी खुश्क भी ना हुआ था कि सीवरेज के निजाम ने गलियों को जौहड़ में बदल दिया। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। अख्तर कॉलोनी में एक माह से रोड पर खड़े सीवरेज के पानी ने इलाका मकीनों का जीना मुश्किल कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना मालही। टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह सीवरेज का काला पानी, ये मनाजिर हैं अख्तर कॉलोनी के। एक माह से ज्यादा अरसा गुजर गया, लेकिन सीवरेज का पानी नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से इलाका मकीनों का जीना दुश्वार हो गया है। हमें यहाँ पे रहने में बहुत दिक्कत हो रही है, हद से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये मस्जिद है सामने, तो यहाँ पे आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। जो सुबह बच्चे जाते हैं स्कूल में, उनको हद से ज़्यादा दिक्कत होती है। सड़क पर जमा सीवरेज के पानी की वजह से दुकानदारों का कारोबार भी शदीद मुतासर हो रहा है। नमाजी भाइयों को बहुत परेशानी होती है, नमाज के कपड़े उनके खराब होते हैं। दूसरा, हमारे कारोबार पे बहुत असर पड़ रहा है। ये हमारी गुजारिश है, जल्द से जल्द इस चीज़ को साफ करवाया जाए ताकि कारोबारी लोग यहाँ तंग ना हो। हम परेशान हैं हजूर, क्या हमारा मसला हल किया जाए। हमारी दुकानों के आगे पानी खड़ा हुआ है गटर का। सड़क पर खुले मेन होल भी इलाके में हादसात का सबब बन रहे हैं। इंतजामिया को चाहिए कि जल्द अज जल्द मसाइल हल करवा के इलाका मकीनों को आसानी फराहम की जाए। कैमरामैन मुताहिर हुसैन, कैमरा राना माली, सिटी 21। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात की जाए तो कैंटोनमेंट वार्ड 2 में बल्दियाती इंतखाबी सरगर्मियाँ जोर शोर से जारी हैं। तफसीलात सैयद रिजवान की इस रिपोर्ट में। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में वोटर्स की दुहाइयाँ और उम्मीदवारों की तसल्लियाँ जारी हैं। कोरंगी क्रीक कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 2 के मकीन मलील नदी पर बंद बांधने की उम्मीद कामयाब होने वाले उम्मीदवारों से लगाए बैठे हैं। यहाँ पानी के मसाइल और गटर के मसाइल, और ये जो अभी कुछ देर पहले किसी ने कहा कि नदी का मसला, नदी में लो टाइड और हाई टाइड होता है। लो टाइड होता है तो हमारा बिटाई का जो फ्लो है पानी का, कचरे का, वो सारा समुद्र में चला जाता है। जब हाई टाइड होता है तो वो फ्लो मारता है, हमारे बिटाई कॉलोनी के गटर लाइनों को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ये इलाके में गंदगी ज़रा ज़्यादा नज़र आती है। इलाके के अवाम निकासी आप के मसाइल के साथ फरहामी आप के बहरान को अहम मसला करार देते हैं। मसला यहाँ सीवरेज का मसला है। आप देख रहे हैं कि पानी अभी बारिश का हुआ है, दूसरा तीसरा दिन है पानी का, सीवरेज का वही मसला है। पानी का बहुत बड़ा मसला है कि पानी तकरीबन 20 से 25 मिनट या आधा घंटा लाइनों में आता है। 2 घंटे अगर वो आता है तो मुख्तलिफ टैंकों में जाता है, जिससे इलाका मकीनों को सिर्फ 20 से 25 मिनट या आधा घंटा मिलता है। नवाज लीग के उम्मीदवार शौकत खान सवाती कहते हैं कि वो कौंसलर के इंतखाबात में हिस्सा लेने से कबल ही दोस्तों की मदद से मसाइल हल करते रहे हैं। यहाँ पर जो पानी के मसाइल है, गटर लाइन के मसाइल हैं, उसके अलावा सीवरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें चाहा और हमें मुंतखब किया तो ये मसाइल इंशाल्लाह दूर करवाएंगे। भिटाई कॉलोनी में मसाइल बढ़ने की वजह गैर कानूनी तामीरात भी बताई जाती हैं, जिसके बायस सहूलियात की फराहमी में खलल पैदा हो रहा है। कैमरामैन अब्दुल कयूम के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। इलेक्शन के हवाले से सियासी जमातों की मुहिम जोरों शोर से जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे दानियाल सदीकी गुलिस्तान जौहर में जमात इस्लामी की जानिब से मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं कि कैसा जोश खरोश है। जी,
جی ہاں بالکل، کراچی کے اندر کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کی مہمات جاری ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی فیصل کینٹ کے علاقہ گلستان جوہر وارڈ 5 کی کارنر میٹنگ کا اختتام ہوا ہے جماعت اسلامی کے تحت۔ یہاں پر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ حافظ صاحب بتائیے گا جماعت اسلامی کی کمپین شہر کے اندر کس طرح جاری ہے اور عوام سے آپ کو کیا توقعات وابستہ ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ بہت اچھی کیمپین ہے، بہت اچھا رسپانس ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں اس وقت۔ اصل میں سب سے زیادہ پرابلم اس وقت کراچی شہر کے لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ لاوارثوں کی طرح گھومتے رہتے ہیں، ان کے کسی مسئلے کو ایڈریس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ان کی آواز بن رہی ہے، ان کے مسائل کے حل کی جدوجہد کر رہی ہے، ان کو ریلیف دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، اور جماعت اسلامی کو جب بھی اس شہر میں کام کرنے کا موقع ملا ہے تو ہم نے ڈیلیور کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نعمت اللہ خان صاحب نے اس شہر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا، تو ہمارے پاس ٹیم ہے، ہمارے پاس شہر کا ویژن ہے اور ایماندار قیادت ہے، اسی لیے ہم نے بلال وارثی جیسے لوگوں کو اور نوجوانوں کو اور پھر بہت اچھے لوگوں کو، باصلاحیت لوگوں کو اپنا کینڈیڈیٹ بنایا ہے۔ اور تمام کینٹونمنٹس میں جو ہماری اس وقت کیمپین ہے بہت اچھی ہے اور ہم گراس روٹ لیول پر بھی کام کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی جا رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ کا شکر ہے کہ ایک پذیرائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ 12 ستمبر کو انشاءاللہ ان کینٹونمنٹ کے انتخابات میں جماعت اسلامی ایک بڑی طاقت کے طور پر سامنے آئے گی اور اس کے نتیجے میں جو بلدیہ کے الیکشن ہوں گے انشاءاللہ اس میں جماعت اسلامی اپنا بہت بھرپور کردار ادا کرے گی۔ وارڈ 5 سے امیدوار بلال وارثی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال بتائیے گا وارڈ 5 میں جماعت اسلامی کی کیا خدمات رہی ہیں ماضی میں؟ جناب ماضی قریب میں اگر دیکھ لیں آپ تو ہمارے پاس کورونا کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں ہم نے رات کی تاریکی میں راشن پہنچایا۔ جس پروجیکٹ میں آپ کھڑے ہیں الشمس کمپلیکس، یہاں پہ بھی بہت سے تقریباً 40 کے قریب گھرانے ایسے ہیں جو لوگ گواہی دیں گے۔ اس کے علاوہ آکسیجن سلنڈر، یعنی وہ تو ایک کاروبار بنا ہوا تھا اس وقت اور ہم نے لوگوں کو مفت آکسیجن سلنڈر پرووائڈ کیے ہیں۔ بارش کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، ابھی گزشتہ روز بارش گزری ہے تو ہینا بنگلور۔ دانیال صدیقی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملیر کی سربراہی میں اجلاس میں سرکاری زمینوں پر رہائشی سکیمز بنانے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نے حقیقی ملکیت کا حلف نامہ جمع نہ کروانے والی کمپنیز کو آخری موقع دے دیا ہے۔ کمپنی کے اصل مالک کو تفصیلات جلد جمع کروانے کی ہدایات جاری کر دیں۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ایسی تمام کمپنیز جنہوں نے ابھی تک حقیقی ملکیت کا حلف نامہ جمع نہیں کروایا انہیں جلد فارم 45 جمع کروانے کی ہدایات جاری کر دیں۔ پاکستان ہاکی کا ایک اور درخشندہ ستارہ ڈوب گیا۔ سابق اولمپئن جہانگیر بٹ انتقال کر گئے۔ وہ 1968 میکسیکو اولمپکس کے فاتح ٹیم کے رکن تھے۔ ایک عہد تمام ہوا۔ پاکستانی اولمپئن جہانگیر بٹ جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ پاکستان ہاکی کے مایہ ناز کھلاڑی جہانگیر بٹ نے 2 اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ 1968 میکسیکو اولمپکس میں گولڈ میڈل جبکہ 1972 میں میونخ اولمپکس میں سلور میڈل حاصل کیا۔ انہوں نے 1966 ایشین گیمز بینکاک میں پاکستان کے لیے سلور میڈل اور 1970 میں بینکاک میں منعقد ہونے والی ایشین گیمز میں ملک کے لیے گولڈ میڈل جیتا۔ اولمپئن جہانگیر بٹ کو آہوں اور سسکیوں میں ڈیفنس فیس 7 کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکر اور سیکرٹری جنرل آصف باجوہ نے جہانگیر بٹ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ یوم دفاع کی مناسبت سے DHA صفا یونیورسٹی میں تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب کا احوال بتا رہی ہیں سمین نواز۔ DHA صفا یونیورسٹی میں یوم دفاع کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں 65 کی جنگ کے شہداء اور جنگی ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کے شرکا نے پاک فوج کے شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اپنی پاک فوج کی لازوال قربانیوں کی بدولت ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ ہر جگہ ہی آپ کو اس قسم کے جو جذبات ہیں وہ ملیں گے، کیونکہ آرمی ہو یا سول سیٹ اپ ہو، چونکہ میرا تعلق آرمی ایجوکیشن کورس سے ہے تو اس میں چونکہ اداروں میں بھی رہا ہوں، تو یہ دس از ارسپیکٹو آف دس تھنگ کہ آیا یہ آرمی کے خاکی میں پہنے ہوئے ہیں یا کوئی سویلین ہے، ہر کسی میں ایک ہی جذبہ ہے۔ 65 ہو، 71 ہو، کارگل وار ہو، ہر جگہ آپ کو ایک ہی جذبات ملیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں آرمی از کیپیبل آف
defending our motherland inshallah ta'ala, and along with all civil setup. तकरीब में तलबा की जानिब से मिली नगमात और तकारीर के जरिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्रिरीन ने अपनी तकारीर में आज़ादी के लिए कश्मीरियों की लासवाल कुर्बानियों पर उनके हिम्मत और हौसले की दाद दी। सरफराज अहमद की पाकिस्तान क्रिकेट क्लब ने फवाद आलम की अल नूर जिम खाना को 5 विकेटों से शिकस्त देकर ऑल सिंध प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। टीएमसी ग्राउंड गुलबर्ग में संगम क्रिकेट क्लब के तहत ऑल सिंध प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में अल नूर जिम खाना ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 45 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 194 रन स्कोर किए। फजल सुबहान ने 72, टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम ने 52 रन स्कोर। क्लब ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। उमैर बिन यूसुफ ने 64 रन बनाए। इंटरनेशनल क्रिकेटर सऊद शकील ने 51 रन, टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक ने 28 रन स्कोर किए। इख्तितामी तकरीब से खिताब में मेहमानी खसूसी प्रोफेसर एजाज फारूकी ने कहा कि टूर्नामेंट के इनेकाद से सिंध भर के खिलाड़ियों को फायदा होगा। इस तरह से अगर टूर्नामेंट्स होते रहे तो 100% कराची की और सिंध की जो टीमें हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको ऊपर आने का भरपूर मौका मिलेगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर हम पाकिस्तान टीम को प्रोवाइड करें। टूर्नामेंट में सिंध भर से 168 टीमों ने हिस्सा लिया। टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम को 172 रन और 11 विकेटें हासिल करने पर टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार देने के साथ ही 10,000 रुपए कैश भी दिए गए। तुर्क ड्रामा इर्तुगरुल गाजी ने नौजवानों को तीरंदाजी सीखने पर मजबूर कर दिया। शहर कायद में भी आर्चरी के खेल की मकबूलियत में इजाफा हो गया। जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखिए। तुर्क ड्रामा इर्तुगरुल गाजी के बाद शहर में भी आर्चरी का खेल मकबूल होने लगा। कायद-ए-आज़म आर्चरी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तहत वर्कशॉप हाई ब्रो कॉलेज में मुनक्किद की गई, जिसमें